Hello, Assalamu alaikum and good afternoon and welcome to another edition of the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं A-Sports, Sense Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. With me in the Pavilion, I have four fantastic former Pakistani captains, four icons of the game, four gentlemen who served the game of cricket really well, and Pakistan. First up, I've got the young, the outstanding, one of the best fielders in the game of cricket, super fit, Shoaib Malik. Good afternoon and assalamu alaikum, Shoaib. Walaikum salam. Assalamu alaikum, everyone. With that, I have got Mr. Dependable, the man who held batting order together when he was with Team Pakistan. Captained us to great glory in Test cricket, one of the most successful Test captains in Pakistan's cricket history. Misbah. Assalamu alaikum, Misbah. Welcome. Walaikum assalam. Thank you, Janab. Also with me today is one of the best wicket keepers of his era, one of the finest runners between the wicket, also known as a man of crisis. I've got the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Assalamu alaikum and good afternoon. Ji, walaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. And finally, the undisputed cricket royalty, the king of all-rounders, the sultan of swing, and the man who holds back nothing when it comes to speaking the truth. I've got Wasim Akram. Wasim, good afternoon and assalamu alaikum. Good afternoon and assalamu alaikum. I hope आप लोग ठीक ठाक हैं. It was a big day yesterday, heavy day. I feel like जब मैं सुबह उठा हूँ रात को तो हम लेट गए हैं. After the show, I felt सुबह जब मैं उठा मुझे लगा किसी ने बोरी में बंद करके रात को डंडों से मारा था. My body was sore everywhere. I don't know. For some odd reason, right? Yeah. I know. I mean, I also felt like बोरी में बोरी में आप आई नहीं होंगे. I was expecting a sentence from you like that. All right, जी दोस्तों, कल का मैच, of course, पाकिस्तान के लिए एक जी सॉरी मिसबा आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे तंबू में आए होंगे. This is what happens here every day in the Pavilion. I have to deal with these gentlemen right here. Thank you, Misbah, thank you, and thank you, Shoaib, thank you very much. Right, दोस्तों, कल की सूरत हाल पे एक दफ़ा फिर नज़र डाल लेते हैं. Yesterday, a very disappointing day in the history of Pakistani cricket. Of course, Pakistan there कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. 282 for the loss of 7 wickets. Babar Azam there with his 74. Abdullah Shafiq there with his half century. Iftikhar Shadab really tried to put up a fight at the bottom of the innings to give us that boost, to give us that total. But I think that, well, now we know for a fact that that total was not good enough. Noor there picking up 3 wickets, but it was Nabi's 10 overs for 31 that have a lot of cricket analysts asking a lot of questions. In response, it was a very methodical approach by the Afghanistan batsmen who went about their business very calmly and ensured that they took their team over the rope in the final 49 overs. They had 1 over to spare. Hassan and Afridi both picking up 1 wicket each. Pakistani bowling looking very, very ordinary there. That is how it went down. And with that, आइए जरा नजर डाल लेते हैं points table पे, because with that, a lot has changed on the points table as well. This is how the points table is looking right now. India looking really good. 5 games, 5 wins, unstoppable right now, and right on top with 10 points. New Zealand trailing them with 8 points, right behind them after losing to them. And but look at the New Zealand run rate. It's still a little ahead of India. However, it's South Africa run rate which is down there, highest. However, South Africa have to play their 5th game, and well, let's see how that points table moves. They should be in action today. Australia holding the 4th position, 2 wins, 2 losses, and then it's Pakistan pushed down to the 5th position. Afghanistan climbing all the way to the 6th position, pushing defending champions England to the bottom of this table. But this is not over yet. याद रहे कि टॉप की 4 टीम्स जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगी. That's your points table. इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं फटाफट से points table के ऊपर, and then we'll just revisit last night's debacle that we've all witnessed. A big congratulations to Afghanistan and all the people of Afghanistan. We saw the celebration videos that are coming out of Kabul. Just fantastic. Congratulations. Well deserved. Well earned. Wasim, let me bring this points table to you and Misbah. Yeah. Actually to the whole floor. Now, Pakistan's road ahead. 4 मैचेस हमें जो हैं वो जीतने हैं जी. एंड देन वी आर इन द होप के दूसरी टीमें जो हैं वो कुछ मैचेस हारें अपनी, एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर नेट रन रेट, राइट? दैट्स आवर वे फॉरवर्ड टू गेटिंग इनटू द सेमीज. I think to start off with, we got to get on that winning streak kind of thing, and then I suppose the run rate will matter.
बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए. बट 3 स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, उनमें से आपका इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है एंड ऑफ कोर्स चौथी टीम बांग्लादेश है. So yes, there is a outright chance, but it's a tough one. After losing yesterday to Afghanistan and that too by 8 wickets, I mean they got 280 plus in just 2 wickets down, and that will definitely dent Pakistan team's confidence, in my opinion. Probably it has dented it already. Correct. Because they're getting backlash in Pakistan. I think we also had a go at them last night, but we actually spoke about the facts. जो प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की क्रिकेट की, नॉट जस्ट नाउ, फ्रॉम लास्ट ईयर और मुसलसल आ रहे हैं, 3 साल से करते हुए आ रहे हैं ये गुफ्तगू. जब पेविलियन हमने किया है दिस. So the big question is how can they recover from yesterday's defeat? Not meant physically, psychologically, boys. You know they'll be a tough as well as a team, especially because they got 4 games to go. यहाँ तो बाहर हो जाओ तो फिर ठीक है. In a way ना ठीक है, मेरा पता है कि भी हम नहीं क्वालिफाई कर सकते. Now they know they have to win all 4 and they have to come back on their mental strength straight away. Like from today onwards, they're probably traveling today, whatever their plan is, and then tomorrow onwards they have to be game on kind of mood. जी बिल्कुल ऐसे ही है. बाबर आजम की कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, आप लोगों ने देखी होगी. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव सीन इट ऑन यूट्यूब नाउ बाय दिस टाइम. सो बाबर आजम ऑफ कोर्स मोइन बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे. उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन जो था उनका वो बड़ा जो था टोन डाउन था हेवीली. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने कहा कि हमने जब अपनी टीम मीटिंग की थी तो हमने कहा था 280-290 काफ़ी स्कोर है इस जगह पे. एंड देन वो एक सवाल के जवाब में कहा, एंड देन लेटर अनदर क्वेश्चन केम इन एंड देन ही रिप्लाई टू दैट, आई थिंक वी वर 15-20 रन शॉर्ट. व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन द टीम्स थिंक टैंक? आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब ही लगे जिस तरह की कॉन्वर्जेशन हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर. मैं मोइन आपको दिखाना दूं. Should we see? Let's take a look at this press conference. All right, there you have it. Moin, I'll start with you. I think सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डाउन थी और ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए. लाइक ऐसी टीम से आप हारे थे जिससे पाकिस्तान का कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाला इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इस टीम से हार सकते हैं. सोच भी नहीं सकते. फर्स्ट टाइम हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट, पहली दफ़ा आप हारे. बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम किया उन्होंने पाकिस्तान की. आई थिंक यहाँ पे जो आखिर में उन्होंने बात की है 15-20 रन शॉर्ट, मेरा ख्याल है कि वो जिम्मेदारी तो बैट्समैन की थी, इनकी खुद थी. बाबर खुद मौजूद थे. आई थिंक जिस तरह से बाबर खेल रहे थे, हमने ड्यूरिंग दी प्रोग्राम जो हमने किया था बीच में उस पर बात की थी. बड़ा एंकर रोल प्ले किया कि उस पर विकेट गिरती तो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे कई बॉलें हमने ज़ाया भी की जिनको हम बाउंड्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. उन्हीं बाउंड्रीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि ये 15-20 रन अगर जो शॉट करें, बट 15-20 रन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30 रन शॉट थे यहाँ पे हम बना सकते थे. देखिए आपकी प्लानिंग होती है कि एंड के ओवर्स में आप मारेंगे, आपकी हिट्स लग जाएंगी. कल लग गई और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है अगर बॉलर्स अच्छी फॉर्म में गेंद कर रहे हो और वहाँ पे अगर नूर के ओवर 2 रोके होते हैं एंड में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे ये रन भी बनते. तो आती है कि एक चीज़ है. बट एज अ कैप्टन नेचुरली थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी डाउन लग रही थी. बट अभी मौका है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हो सकता है. पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कम बैक किया ऐसे सिचुएशन से आए. एटलीस्ट कम अज़ कम एक होप नज़र आ रही है और यहाँ पे कप्तान को लिफ्ट करना पड़ेगा पूरी टीम को. थोड़ा सा जज्बात क्रिएट करने पड़ेंगे टीम के अंदर, बिकॉज इस वक्त जो हालात है उससे तो नहीं लग रहा बॉडी लैंग्वेज से ये इनकी परफॉर्मेंस है ये जीतेंगे. बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा बाबर को टीम में. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक चीज़ जो उन्होंने कही, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. आई डोंट सी दैट है. आई मीन इस वर्ल्ड कप में तो, एशिया कप में तो नज़र नहीं आया. स्पेशली स्पिनर्स, आर स्पिनर्स इन दिस वर्ल्ड कप दे गॉट ओनली 6 विकेट्स एंड दे एवरेजिंग 100 पर विकेट. वाओ. सो बेस्ट बॉलिंग अटैक्स का स्टैट्स ये नहीं होता. एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि इनका फील्डिंग में एटीट्यूड नहीं था. Whose job is it to actually motivate the kids? It's their own job to start off with. लड़कों की अपनी है, and then that's due to, we have been discussing this from last 3 weeks. We're like a Peter repeater now, repeating ourselves. Yeah. Like it's because of fitness. Simple. नहीं तो उन्होंने खुद बोला है फिटनेस का, खुद बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिटनेस का भी बोला है उन्होंने कि हम फिट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिटनेस. बट उनसे क्वेश्चन होना चाहिए था कि आपकी राइट डायरेक्शन में प्लानिंग थी इस वर्ल्ड कप के लिए नहीं. एंड तीसरा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे स्कोर्ड 300 बट दे कुडंट फिनिश इट. सो कर्क्स ऑफ इट इज़
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना बैटिंग में समझ आ रही है, ना बॉलिंग में समझ आ रही है, ना फील्डिंग में समझ आ रही है. सो ऑल द थ्री, दैट्स द वरी. आपकी कोई चीज़ एक अगर बेहतर कर रही है तो एटलीस्ट आप उस पर प्रेशर डालते हैं, लेकिन जब आपकी तीनों चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, और बॉलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर 1 न्यू बॉल. आप अर्ली ऑन स्ट्राइक करते हैं जब आप ऐसी पिच पे जहां आप मुश्किल टाइम पे थोड़ी सी स्लो पिच है बैटिंग लेते हैं. आई थिंक उस टाइम पे ये टोटल बुरा नहीं था. सेकंड टाइम के लिए अगर 15-20 हम देखें कंडीशन ड्यू आनी है ये, उसके लिए 15-20 रन आप एक्स्ट्रा करें, बट स्टिल 300 होता या 350 भी होता तो यू हैव टू स्ट्राइक अर्ली. नए बॉल पे अगर आप 129 या 130 का स्टार्ट दे देंगे एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स, भाई आपने कुछ सोचा कि आउट कैसे करना है, हमने मिडिल में आउट कैसे करना है. इशू आ जाता है बार बार. जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, आपके को प्लान नहीं होगा उसका कि भाई हमने इनको प्रेशर डालना है, रन्स रोक के इनको चोक करवाना है, या हमने कोई इनको अटैक करना है, उस वक्त तक आप मुश्किल है आपकी. All right, Misbah, thank you. We're going to take a break right here. We need to take a break on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. And with me in the Pavilion, I am joined by Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. ब्रेक में जाने से पहले हम कल का जो पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान मैच हुआ था उसके हवाले से बात कर रहे थे. बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे थे. Wasim, you wanted to add something right before the break. You wanted to ask Shoaib something. अब भूल गया. Middle of the sentence जब काट देता तो बंदा. I really do apologize. No, that's fine. रात को सोए भी 1-1:30 बजे हैं, फिर सुबह उठ के आना भी पड़ा था. got up. And I want to emphasize on one thing. I have this earpiece in my ear. I have a producer who is consistently sending me things that I need to do. और वो मैं कभी किसी को interrupt करता हूँ तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ आप चारों से, क्योंकि I have these instructions that I have to follow. We feel you, brother. I appreciate it. Thank you very much. Anything, Shoaib, you want to add to this whole scenario? Debacle? The debacle that we've had. I said what I had to yesterday. Right. नए ऑडियंस सुबह के बैठे हो, बताओ. नए लोग आए सुबह तो. देखिए टेक्निकल चीज़ें जो थी वो तो कल बताई, टेक्निकल में चले जाते हैं. उसमें यह है कि आपके बैटर्स जो हैं दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन. कल जो आपका मैच था उनमें क्वालिटी स्पिनर्स थे, और वो हम लोगों ने एक और उन्होंने ऐड कर दिया नूर अहमद को, रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, तो हम लोगों ने और ज़्यादा स्ट्रगल की. और जो लास्ट के रन्स बने उसमें देखें कि राशिद को एक इफ्तिखार ने छिक्का मारा था, बाकी जो है उमर जई को और नवीनुल हक को रन्स बने. हम लोग जो है रन्स वर ओके, बट अगर आपका ए प्लान नहीं चल रहा, हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर आपका ए प्लान नहीं चल रहा, कोई बी प्लान नहीं है. ए प्लान ये है कि शाहीन का स्विंग होगा अर्ली ऑन, आपको विकेट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा उसके बाद. मिसबा भाई कब से कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को पहले 10 ओवरों में नहीं ओवर कराओ, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसे कुशन दो, 10 के बाद जो है वो. Sorry to cut you, I don't agree with it, Misbah, and your this thinking. At this level, my point, मेरा point सुन लो, you might not agree with me, I'm fine with that. At level, you're playing at international level, and you are an international bowler, and you have been with the team from last, say, 5 years, on and off, one day, test cricket he played as well. अगर आपको इस लेवल पे 10 ओवर में बॉलिंग करना नहीं आती, then there's something wrong somewhere. मेरा ये सवाल है कि अब एक चीज़ नहीं हो रही कंसिस्टेंटली, हमने 4 मैच देख लिए, now what you do? नहीं, एक सेकंड और. वसीम भाई, I've played cricket with you, वकार भाई, समटाइम आप लोगों को भी किसी एंड से प्रॉब्लम हो रही होती थी तो आप बात करके चेंज करते थे. रिक्वायरमेंट, लुक, टीम गोल कम्स फर्स्ट. तो अब अगर वो आपका ऐसा बॉलर है जिसको आपने काम लेना है उससे, तो उससे आपको थोड़ा क्वेश्चन देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपने कोई ऑप्शन भी नहीं रखी, भी जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते थे. और आउट ऑफ द बॉक्स एक ही चीज़ बोलते जा रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि एज अ लीडर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, but you're not thinking out of the box. But what is out of the box for him right now? Out of the box ये है कि अब साउथ शकील था, 2 ओपनर का पार्टनरशिप लगी, दोनों राइटी हैं. Bring him. आपके मेन बॉलर अगर मार खा रहे हैं तो bring him. Give him 2 overs. कोई नहीं है. ठीक है, क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कोई वो नहीं खेले उसको कभी, कोई
डिफरेंट हो सकती है चीज़ें, तो दिस इज़ व्हाट आउट ऑफ द बॉक्स। और ऊपर से नबी 10 ओवर कर जाए, कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर, 5 फील्डर दायरे के अंदर, वो बात नहीं हजम होती है। एक बात, सॉरी मैं आपकी यहाँ पर बात को इंटरजेक्ट करना चाह रहा हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, एनालिस्ट, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स that I've heard since last night on different platforms, जो ये कह रहे हैं कि we do not understand कि Abdullah Shafiq was playing just fine, he was playing his game, Yeah, I read and that as too. soon as the captain came into bat with him, he muted his innings completely. What's अल्लाह करे ऐसा ना हो, बट सम टाइम ऐसा होता है कि आप ज़रा ये भी देखते हैं कि दूसरे एंड से अगर शॉट्स लग रही हो तो आप थोड़ा सा ये सोचना शुरू हो जाते हैं एज अ बेटर नॉन स्ट्राइकर एंड पे कि यार वो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तो या उसको अपनी तरफ ढाल लो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं भी उस वक्त कप्तान गया था तो उसकी ख्वाहिश कोशिश यही होगी कि यहाँ विकेट ना गिरे और हम खेलते चले जाए। Fair enough. बट मेरा ख्याल है कि उस वक्त थोड़ा सा पुश करना देना चाहिए था वहाँ पे, बिकॉज कि अच्छी उसके बैट पे बॉल आ रही थी, बहुत ही क्लियर, बड़ी क्लीन हिट्स मारी थी। एक और चीज़ हो सकती है, वसीम का बड़ा एक ज़बरदस्त कोट है कि क्या है कि अगर फूफी की मूछें होती तो चाचा कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो फिर डिस्कशन करने का फायदा नहीं। एक चीज़ और हो सकती है कि ये हो सकता था और वो हो सकता, सब यही बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने, अगर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे बाबर आजम की, तो उन्होंने कहा कि वी वर प्लानिंग टू स्कोर 280 to 90। जी मैंने ये बात हो सकता है ये एक एलिमेंट हो सकता है, उन्होंने आके अब्दुल्ला शफीक को कहा हो कि लेट्स नॉट लूज अ विकेट और ये टेक दिस पार्टनरशिप डीप। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह पे कहा है कि 280 to 90 हमने टीम मीटिंग में डिस्कस किया था कि ये टारगेट होना चाहिए, और फिर जो दूसरे एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हम 15-20 रन शॉर्ट थे। देखें, अगर उस पर ऑनेस्ट आंसर चाहिए तो जब उन्होंने पहली बात की थी वो उन्होंने उर्दू में की थी, जो लास्ट वाली उन्होंने 15-20 रन शॉर्ट थे वो उनके पास, मे बी ही वाज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, तो उसने ये कह दिया हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। Yeah, I don't we shouldn't be commenting on somebody's English skills. No. You misunderstood. Okay. हाँ, you misunderstood. मेरे ख्याल में मैं बाबर के साथ बोल, मेरे ख्याल में मतलब मायन तो सुल्तान रही हुआ नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने PhD नहीं की हुई, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता कि किसको क्या आता किसको नहीं आता। That's not my domain. We being a पाकिस्तानी, सबकी इज्जत जो है करनी चाहिए, वो बाहर का हो या अंदर का हो। सो यू टेकिंग इट टू अ रॉन्ग वे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये था कि हो सकता है कि वो बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हो, उनको नहीं समझ आ रही हो, तो उन्होंने बोल दिया 15-20 रन और एंड ऑफ द गेम। ठीक है, मेरे ख्याल में सिंपल सी चीज़ है, आपने जब असेस किया विकेट को स्टार्ट में, जब पहले आप खेल रहे थे और विकेट को देखा, तो यू असेस्ड इट के 280-290 वुड बी अ गुड स्कोर। लेकिन वो बात की बात कर रहे हैं, जब बॉलिंग की तो उस वक्त थोड़ी सी कंडीशन बेहतर लगी हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर है आपको फील होता है कि हम 15-20 रन शॉर्ट हैं उस कंडीशन के मुताबिक, और बाद में आपको ये एहसास होता है कई दफ़ा मैच में कि 15-20 रन और होने चाहिए थे। वो डिफरेंस इन जो कंडीशन हुई है थोड़ी सी, प्लस डिफरेंस इन द बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग क्वालिटी, क्लियरली वी कैन सी कि कोई मैच नहीं था। जो उनके तीनों स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, मुजीब अभी नहीं बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, बाकी तीनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। हम we were below average even. Oh yeah, they were no question about the fact that Afghanistan were a better team last night. That's it. They were a better team. They had a better plan. They executed it much better. And they were better than us. They outclassed us in every way. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, we're closer to the action of the day. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. हम लोग ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कल पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के हवाले से. Gentlemen, I need to bring that conversation to an end now. Please. So if there are any parting words that anyone would like to say here, say speak now or forever hold your peace. All right. नहीं, I think फ़कत छोटी सी बात है, बिल्कुल अभी जैसे मैंने बात की कि अभी चांस तो मौजूद है ना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आउट हो गए टूर्नामेंट से। आई थिंक थोड़ा सा एक वेकअप कॉल देनी चाहिए बाबर को, अपने आप को भी, अपने प्लेयर्स को भी, और उसी तरह फिर रिएक्ट करना चाहिए तमाम प्लेयर्स को। दोस्त दूसरे दोस्तों कहता है यार मेरा चाचा मर गया, कहता है बिल्कुल ही मर गया।
अब इतने बड़े बड़े कप्तान इस तरह की बात करेंगे तो फिर क्या होगा? जिन्होंने हमें सिखाया है, सीरियसली मोइन जिन्होंने हमें सिखाया है, हम बहुत ऐसे मैच, इन्होंने खुद इतने जितवाए हैं ऐसे मैचेस, टूर्नामेंट जितवाए। ठीक है कि स्टिल 4 मैच तो है ना खेल। हाँ, वो तो हमें खेलने के एवरी चांस, यू राइट। आप कम से कम चीजें वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। But it's not a quick fix, is it? It's just all here now at this stage. All here. अभी यही कर सकते हैं ना वसीम में, अभी और क्या है हमारे पास? कुछ भी, वरना हार जाएंगे। एक तरफ ये कोई बात नहीं, ठीक है, पर उनको बोलो भाई जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फिक्स करने की कोशिश करो, फाइट टिल द लास्ट बॉल एंड प्ले फॉर द टीम। शोएब, उसमें एक और चीज़ भी तो है ना, सॉरी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, हमारी हाई ग्राउंड और बट बात आ गई है तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। यू लुक एट द अदर टीम्स बेंच स्ट्रेंथ, जो बेंच पे बैठे हुए बाहर जो रिप्लेस करने के लिए लोग उनके पास अवेलेबल है, उनके पास कितने ऑप्शन है। कैन यू लुक एट द इंडिया टीम बेंच स्ट्रेंथ, मतलब वो कितने बड़े प्लेयर्स वेट करने के हमें चांस मिले तो हमारे जो 11 आज खेले हैं, हमारे बाकी 4 हैं मोहम्मद वसीम, फखर, तीसरा नवाज और सलमान अली आगा, ये 4 हैं। So our options are limited as well. Then that रिजर्व वाले भी डाल रहे हैं। हाँ, नहीं, बट उनका फायदा कौन है? उसमें ये होता है, उसमें ये हो रहा है जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा। वो जब टीम हारती है तो सारे ही ऐसे लगने शुरू हो जाते हैं। But that's not the thing. What I'm saying is कि so the bench strength doesn't look that great. The reserves don't, what I'm trying to say is that look at the other bench strengths. We have an untested or slightly less experienced and exposed bench strength. And on top of that, I mean, we came into this World Cup. We should have come a little bit more prepared, I assume. I don't know. I mean, there is just... जो bench strength है, 11 की बात अगर करें, आप छोड़ दें उसको। अब्दुल्ला शफीक, गुड लक है हमारी, वो बेचारा एक मैच खेल के आया एंड ही स्टार्ट परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड कप। ये एक गुड लक है हमारी, वरना आप किसी भी ऐसे प्लेयर से एक्सपेक्टेशन ऐसी ना रखें। सऊद शकील एक मैच खेल के आया डायरेक्टली वर्ल्ड कप में, कोई उसका पीछे एक्सपोजर एक्सपीरियंस वनडे नहीं खेला। हसन अली फ्रॉम इंजरी पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम में नहीं था, वो आया है और अब खेल रहा है। शादाब आउट ऑफ टच था, हमें नज़र आ रहा है वनडे क्रिकेट में उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, वो हमें प्रॉब्लम आ रही है। बैकअप में हमारे पास हमने जो उसामा भी है वो कितने मैच खेला है, वो टोटल बेचारा 8-9 मैच खेला है, वो हमारा बैकअप है। हमने मेक और ब्रेक की बात की थी, अब लड़कों को क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर यहाँ से ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि अब कोई चीज़ रह नहीं गई है। अगर मैच नहीं जीतते तो इसी टीम में से कम 8 लड़के मुझे चेंज होते हुए फिर नज़र आते हैं, क्योंकि आपको रीबिल्डिंग फेज में जाना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल जाना पड़ेगा। चीज़ है, इससे लो नहीं हो सकते जहाँ हम लोग आज खड़े हैं, ठीक है। तो जब इंसान कोई भी लाइफ में इतना लो चला जाए तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या वो और उससे नीचे चला जाए या वो वहाँ से खड़ा हो और फिर यहाँ पहुँचे। तो पाकिस्तान टीम के पास ठीक है बहुत लो है इस वक्त, बट एट द सेम टाइम it's a great opportunity, great opportunity to show character. Yeah. Or just go out there and give your best shot and play for the team. मोइन, आपने कहा कि आपको तो 8 लड़के नजर आते हैं जो इस वर्ल्ड कप के बाद who might not be with the Pakistan team. I'm hoping कि सिर्फ ये हम लड़कों तक महदूद ना रखें। I hope कि ये पीछे बिल्कुल ऊपर तक जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तक के एचेलॉन्स में जाए, जहाँ पर लोग हैं जो इन तमाम माशाल्लाह उसके अंदर पूरा एक रिवैम्प चाहिए सिस्टम का, जिसे कहते हैं ना एसिड वॉश चाहिए, तेजाब से धो के उसको दोबारा रीसेट किया जा सके। With that we'll close this discussion because I know Pakistani fans have a lot of questions and comments still. We will talk about that post-match in Ask the Pavilion. Now let's talk about the game in hand. ये आपकी स्क्रीन के पे लेकर आ रहे हैं आज का मुकाबला है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। मुंबई से आपकी खिदमत में 1:30 बजे बराह रास्त के मैच शुरू हो जाएगा। अब इस मैच के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर लेते हैं।
साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स बहुत ज़बरदस्त टीम है, अभी तक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अदर देन दैट वन गेम दैट दे लॉस्ट अगेंस्ट नेदरलैंड्स, व्हेन नेदरलैंड्स रियली सरप्राइज्ड देम, साउथ अफ्रीका आर लुकिंग एज अ फैंटास्टिक बैटिंग यूनिट, बॉलिंग यूनिट, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट इससे पहले कि ये साउथ अफ्रीका की बात की जाए, बांग्लादेश ने पिछले साल जो है साउथ अफ्रीका जाकर सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। That's a big deal, yeah, and that too in South Africa. Yeah. Okay, बांग्लादेश में जीते, probably मैं समझता कि turning low track, slow track बनाया, but winning in Bangladesh, that's a massive deal. So well done Bangladesh winning against a strong South African team. Tashkent Ahmed ने 8 विकेटें ली थी, उसमें 5 भी उसमें आउट किए थे इनिंग में. So yeah, that confidence should be with these boys. Okay, they are struggling with the skipper who is injured previous game. I hope he plays. And same with South Africa. वो होप करेंगे वो ना ही फिट हो। एक और चीज़ भी है कि वहाँ जब बांग्लादेश टीम गई साउथ अफ्रीका में तो रिलेटिवली वीकर साइड जब होम कंडीशंस में खेलते हैं, सो साउथ अफ्रीका ने क्या किया, दे ट्राइड देयर बेंच स्ट्रेंथ, दे ट्राइड देयर, so that's why they lost प्लेयर्स हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन द कमिंग ईयर्स। तो आई गेस ये हमें भी जो है वो होमवर्क पर ये काम हमें भी नहीं, सीखना आई एम ऑल फॉर इट, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टू प्लान दिस? आई मीन ये हमारे Is it skipper has to be involved, the board or द शो, कप्तान ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान होता है, कप्तान। आप और मैं वही सवाल पूछते हैं, हमें जवाब कभी भी सही नहीं मिलता। नहीं कप्तान है, ऑफ कोर्स कप्तान लीड कर रहे हैं, क्रेडिट डिस्क्रेडिट उसी को जाना है, you तो know, उसकी अगर वो input अच्छी टीम होनी बनाएगा चाहिए कि भी जीतेगा। अगर नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हमसे नहीं जवाब मिल रहा, आप लोग दे लें। मेरा काम है सवाल पूछना। Remember, my job is to ask the questions. नहीं। Your job is to answer those questions. फिर आप मानते भी नहीं ना, कभी कभार ऐसा भी होता गुस्से से मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। हाँ, प्यार से मुझसे पूछे मैं जान भी दे दूंगा, गुस्से से मैं नहीं दूंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कैसे आप पर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, आपके चेहरे को देखते हैं, हमारे दिल से सिर्फ मोहब्बत निकलती है। नहीं, मकसद देखें मोइन भाई, ओए मिसबा का तुम जवाब सुन के रहे, कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अच्छा जिदा पाएं तुसी 3 दिन च शूट खत्म होना सी, तुसी ਉਹਨੂੰ 3 साल ते ले गए, ਉਹ फिल्म जी है। नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि देखें whoever is running the show, वो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका विजन हो, और बात फिर वही आ जाती है कि 3-3 दिन के लिए लोग आएंगे तो कोई विजन लेके नहीं आएगा लॉन्ग रन। पूरी खिचड़ी बनी हुई है, हर जगह खिचड़ी बनी हुई है। चले जनाब, इस मौके पे लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद मजीद बातचीत। डोंट गो अवे, कीप वाचिंग द पवेलियन। वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY's ऐप। And today in the ICC Men's World Cup, we're taking you to Mumbai, where South Africa are going to clash with Bangladesh. ये अभी मैच फीचर आपके सामने आ रहा था। जरा हेड टू हेड काउंट देख लेते हैं दोनों टीमों की। दोनों टीमों का वर्ल्ड कप के अंदर 4 दफ़ा मुकाबला हुआ है आपस में, और 2 मैचेस जो हैं इसमें से वो साउथ अफ्रीका जीता है, और 2 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश जीता है। और ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बांग्लादेश अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका गया था पिछले साल, जहाँ पे बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका जाकर सीरीज जो थी वो जीती थी। सो टुडेज disadvantage though, Moin, before we talk about that, we have the pitch report with us. Let's take you over to Mumbai, and the pitch report brought to you by Onic. Wasim, आपका favorite subject, pitch report. bizarre. They were showing fast bowlers. He said weather suits Bangladesh, pitch suits South Africa. Yeah, this is one of those pitches where Nasir said that if you win the toss, you bat. But I think so far 5 मैच जो लास्ट हुए हैं, 3 times teams जिन्होंने चेस किया है वो जीते हैं. Wicket looks really good. लास्ट मैच में 399 यही इसी ग्राउंड पे। Yeah, typical Wankate pitch. Ball will come nicely. You can see a little bit of grass rolled in nicely into the pitch, and it's not very dry. सबसे बड़ा चैलेंज जो वो बात कर रहे थे कि लुक अप, जैसे इंग्लैंड में आप करते हैं, बॉल स्विंग होता है शारजा में, और यहाँ पे करते हैं वेदर। क्योंकि लास्ट गेम में अगर आप देखें क्लासन, वो इतनी रनिंग भी नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद ही वाज लाइक, ऐसे लगता था कि अभी वो गिर जाएंगे, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हीट थी। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा फैक्टर है, आप अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी सेकंड टाइम पे बैटिंग करने की, ऑलरेडी यू आर ड्रेन आउट, और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। 34 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है वहाँ पर। चीज़ है, आप देखें कि जितने बड़े 100s बने हैं
वो फर्स्ट बैटिंग में बने। करेक्ट, यस। तो जब आप 50 ओवर्स फील्डिंग करते हैं तो वो सेम एनर्जी नहीं होती है, तो वो जो वो सुपरमैन ने एक 100 किया, एक 90 नॉट आउट किया, 95 विराट कोहली ने विराट बैटिंग कोहली सेकंड में। बिल्कुल किए उन्होंने, लेकिन बड़ा 100 नहीं बना। बड़े 100 अचीव इन 140, 150, 160, राइट, 160 इस तरह नहीं बना, क्योंकि वो एनर्जी नहीं रहती। बट विराट जो है वो एक ही है मेरे ख्याल में। वो बाकी नहीं है इतने सारे। वो बाकी लोग कहते हैं किंग कोहली आई थिंक वो किंग वाली स्टेज गुजर गई है उनकी। आई थिंक दिस इज नाउ एम्परर स्टेज, ही इज द एम्परर, द किंग स्टेज इज गॉन। एंड विद दैट वी आर गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर इन द pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. With me I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. So let me bring this to you, Misbah. Both teams are waiting for the fitness of their captains. दोनों साइड पे कप्तान जो हैं वो अनफिट हुए हैं। कोई मसला है, उनको सोचने दे, आप क्यों इधर से? मतलब मैं सवाल नहीं पूछ रहा। उनका मसला है मेरे ख्याल उनका में। मसला और है। मेरे ख्याल में दोनों टीमें चाह रही होंगी कि टॉस जीत के बैटिंग करें। फिलहाल तो ये सोच रहे होंगे, कुछ दुआएं शुआएं पढ़ रहे होंगे, टॉस जीते, गर्मी ठीक ठाक है वहाँ पे, 34 डिग्री सेल्सियस की पिच है। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका के कैंप में कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है। उनकी बैटिंग ज़बरदस्त, उनकी बॉलिंग ज़बरदस्त इस टाइम परफॉर्मेंस कर रही है। एक मैच में थोड़ा सा वो जो एक फैक्टर है उनका कि सडनली बड़े इवेंट में चोक हो जाते, उसको भी उन्होंने वापस एड्रेस कर लिया, गेम एड्रेस किया है। और एक मतलब टफ अपोजिशन के अगेंस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। तो दे आर कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका को इस टाइम ये सोचना है कि जिस माइंडसेट से वो खेल रहे हैं, जैसी मर्जी गेम हो, प्रेशर हो, जो मर्जी, ऐसे ही खेलना उन्होंने। इससे वो हटेंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। बांग्लादेश के लिए मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने रिसेंटली सीरीज़ जीती है। जब आप सीरीज़ जीते होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंदर से बिलीव होता है कि हम कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। वो आपको वो फार्मूला कहीं ना कहीं समझ आया होता है कि इनको कैसे फंसाना है हमने। तो लेट्स सी हाउ दे गो। बांग्लादेश के बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। साउथ अफ्रीका लुक्स फेवरेट, बट all right, with that it's time to flip. Let's take you over to Mumbai where both the captains are walking out and it's time to flip, brought to you by Samsung. जी जनाब, मुंबई से खबर आ गई है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। याद रहे कि इंग्लैंड के साथ जो मुकाबला हुआ था उसमें भी साउथ अफ्रीका ने पहले इसी मैदान में, इसी ग्राउंड में पहले बैटिंग की थी और 399 रन स्कोर किए थे। शोएब, गुड टू सी दैट शाकिब अल हसन इज बैक। यस, इट्स गुड थिंग फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। और वैसे भी ही इज़ बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, और कैप्टन भी हैं, वापस आए हैं साइड में, और इट्स अ गुड साइन। और सिर्फ एक बैड साइन है, वो ये है कि ही लॉस्ट द टॉस। और साउथ अफ्रीका जो है वो ऑलरेडी इस वेन्यू पे खेल चुके हैं अगेंस्ट द लास्ट वर्ल्ड चैम्पियंस, और उन्होंने काफ़ी मतलब उनकी पिटाई भी की है। तो अगेन ही वन द टॉस। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे नहीं पता कि वो फुली फिट हो गए हैं कि नहीं भावुमा, बट जो उनकी जगह खेले थे रीज़ा हैंड्रिक्स, उन्होंने परफॉर्म किया और कैप्टन ने बोला कि नहीं, हैंग ऑन, आई शुड सिट आउटसाइड, ही डिजर्व्स अनदर अपॉर्चुनिटी। और इससे उनका कॉम्बिनेशन और अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है कि उनके जो कैप्टन हैं वो, बट इस वर्ल्ड कप में ही इज़ बिट ऑफ आउट ऑफ फॉर्म, तो उन्होंने कहा कि आई शुड सिट आउटसाइड एंड लेट्स गिव हिम अनदर अपॉर्चुनिटी। उनका कॉम्बिनेशन और अच्छा हो गया। और लुंगी नगीदी, आई थिंक उनको थोड़ा सा नी निगल की वजह से वो आज नहीं खेल रहे हैं। ये प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। वसीम, टेक अस थ्रू साउथ अफ्रीका। It's more or less the same side they played the last game. The skipper is still injured, I suppose. He's not in the squad. Opening pair, they both are really good. Hendrick plays beautifully other day, got 80 odd, and then De Kock is in great nick, 200s already. When middle order is strong as ever, Klaassen, Akram and Nadusa, they all match winners on their own. And don't forget about the Kelamela. And then Johnson is good nick with bat and bowl both. And then of course 3 fast bowlers. Williams is in instead of Nagidi. He's got a niggle. So Williams is in for Nagidi, and then Maharaj, the left arm spinner. Kotsi bowls quick, bowls well, but bit expensive. And Bangladesh, Moin, take us through. जी बिल्कुल। लिटन दास पिछले मैच में स्कोर भी किया, तंजीद ने भी स्कोर किया, अच्छा स्टार्ट मिला था। दैन शांटू, शाकिब, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, मिराज, दैन नसूम, शरफुल, हसन, मुस्तफीज़। एक चेंज हुई, कप्तान वापस आए तौहीद की जगह।
ये दो एक ही जगह। जो बैट्समैन है नंबर 3 का बांग्लादेश का, ही इज नॉट फायरिंग। शांतो जी अभी He's a good player. Great. He is very He's good a player. very good player. And they're good but pitches. He should be able to get And runs. even ये जो डाउन द ऑर्डर महमूदुल्लाह को जो यूज कर रहे हैं महमूदुल्लाह 7 को, हाँ। नंबर पे समझ से बाहर है, वो इतनी फॉर्म में बहुत अच्छा फिनिश करा लास्ट था। मैच में शोएब ने भी डिस्कस किया था, शोएब ने स्पेशली कहा था कि कई सिचुएशंस पे आप जैसे आपका मुशफिकुर रहमान इज इन गुड निक, जी हाँ। अगर आपकी 1-2 विकेटें गिरती हैं वो 4 पे जा सकता जी हाँ, है, ताकि वो लंबी बारी ले और एक साइड एक एंड रोके ताकि आपकी पार्टनरशिप्स लगें। All right, with that, we're going to take a break on the Pavilion. When we come back, we are closer to the action in Mumbai. Don't go away. Keep watching A Sports and Sports and the Airways app. Yes, welcome back to the Pavilion. News out of Mumbai. South Africa ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराएगी। तास्किन मिसिंग है लाइनअप में से बांग्लादेश की, क्या अपडेट है इसके बारे में मिसबाह? अपडेट शोल्डर की कोई उनको है निगल, तो उस वजह से नहीं खेल रहे। आई थिंक कि स्पेशली अगर किसी टीम के अगेंस्ट आपने परफॉर्म किया होता है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने विकेट्स लिए हैं और थोड़ा प्रेशर होता है ऐसे बॉलर का, आज मिस करेंगे मोस्ट एक्सपीरियंस। और जो बात भी हो रही थी कि यहाँ पे वो 8 to 9 मीटर्स लेंथ जो है वहाँ पे आके जो बॉलर मारता है गेंद को, हिट द डेक वाले बॉलर हैं, उनको हेल्प मिल रही है यहाँ पे। वो कि दूसरे बॉलर भी ऐसे ही हैं बांग्लादेश के, हाइट वाइज भी टॉल हैं, आके लेंथ बॉल करते हैं। बट तस्कीन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, अभी भी उनके उस तरह की फॉर्म नहीं थी, बट स्टिल ऐसी टीम के अगेंस्ट एक, मुझे अगर किसी टीम के अगेंस्ट कोई बॉलर तंग कर रहा है हमारी बैटिंग लाइनअप को और वो मिसिंग है, तो एक मेंटली आपको रिलीफ मिलता है कि एटलीस्ट वो नहीं है। बाकी मिसबा इस वर्ल्ड कप में दे वर हेवीली रिलाइंग ऑन देयर फास्ट बॉलर्स, बिल्कुल, एंड दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अ बिट टेकिंग विकेट्स अर्ली ऑन एज वेल, इवन ड्यूरिंग द गेम, सो दे आर एवरेजिंग 56 रन्स पर विकेट, द फास्ट बॉलर्स इन दिस वर्ल्ड कप बांग्लादेश के। बिल्कुल, आई थिंक बिगेस्ट जो एलिमेंट है वो तस्कीन का है, जो मैंने प्रीवियसली इनकी सक्सेस देखी है जहाँ पे भी, तस्कीन इज़ द वन जो नए बॉल पे आके मुश्किल डालता है, आउट करता है, विकेट्स अप फ्रंट। हमने देखा है कि पाकिस्तान के लिए जो शाहीन काम करता था पहले, वो तस्कीन करता था इनके लिए। पाकिस्तान को भी ट्रबल हो रही है, वो नए बॉल से नहीं कर रहा और तस्कीन इनके लिए नहीं ले रहा विकेटें, तो बांग्लादेश की बाकी बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। All right, with that it's time for expert predictions brought to you by Pavilion Natural. Right जनाब, expert predictions, Shoaib Malik. South Africa. All right, Moin. जी साउथ अफ्रीका। All right, Wasim. SA for me as well. SA and Misbah. साउथ अफ्रीका। South Africa, and there you have it, all 4 captains agreeing that South Africa is most likely to be the winner at the end of this contest. And those are your expert predictions brought to you by Pavilion Natural. And it's time for a player to watch out for, brought to you by Ufone. Right, Misbah, let's start with you. Wonder Doosan. Van Dusen, and for you, Wasim? I'll go for Quinton de Kock. De Kock, all right. And for you, Moin? क्लासन। Klassen. And for you, Shebi? Rabada bowler from South Africa. Rabada from South Africa. De Kock, interesting choice, Wasim. Any particular reason? Yeah, he's in good nick. He's one of my favorite players. But he didn't And score when anything. he gets going. He didn't score anything in the last game, Yeah, right? Home ground है उसका। So that's why he's due. He's due. Again, good matchup also. Yeah. Oh, दो Off off spinners? spinners. और लेफ्ट आर्म। Interesting. मुस्तफिजुर रहीम भी है। And those are your players to watch out for, brought to you by Ufone. मोइन, फायरवर्क्स हमें देखने को मिलेंगे पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका से, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इस टीम का। 40 छक्के मारे हुए 4 मैचेस के अंदर। आई थिंक बिल्कुल नज़र आ रहा है जिस तरह के बैट्समैन हैं और जितनी एग्रेसिव क्रिकेट ये खेलते हैं, कहीं भी बॉलर को मौका नहीं देते कि उनके ऊपर हावी हो। हमेशा इनकी प्लानिंग में यही होता है कि काउंटर अटैक करें। ऑल्दो के इस तरह एक मैच भी हारे हुए नेदरलैंड के खिलाफ, बट जो उनका प्लान है उस पे स्टिक रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उसी पे स्टिक रह जाए और जो भी बैट बॉल है उनको मेक श्योर करते हैं कन्वर्ट करें बाउंड्रीज के अंदर और कांस्टेंट प्रेशर डालें बॉलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हीट का भी एक प्रेशर तो होगा इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर, यहाँ पे इस 50 ओवर्स में फील करके फिर बैटिंग में जाना। आई थिंक बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन होगी टू बॉल साउथ अफ्रीकन। Do we expect to see Bangladesh chasing a big target in case South Africa put a big target, some fiery work जिस तरह श्रीलंका ने कोशिश की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बहुत सारे छक्के मारे थे धर्मशाला में आके? देखिए उसमें अगर तो वो
करेंगे बड़ा टोटल साउथ अफ्रीका, तो जो बांग्लादेश के बैटर्स हैं वो मोर और लेस 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जिस दिन जो रन्स बनाते हैं। लिटन दास हैं बट उन्होंने भी थोड़ा सा गेम चेंज किया है। जो शांतो हैं वो खेलते हैं यंगस्टर ऐसे ही वो, बट अगर बड़ा टोटल बन गया तो आई डोंट सी इवन क्लोज कॉन्टैक्ट्स। All right, gentlemen, thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. Thank you, Wasim. Good luck to both the teams. We'll take you now to Mumbai for the game, and we will see you in the pavilion at the end of the game.